All right, so today we are going to continue with theory of current electricity, and probably I'm going to finish theory of current electricity in this lecture. तो आज हमको देखना है combination of resistances. I mean, you already know if you combine resistances in series, equivalent is R1 plus R2 plus R3 and so on. वो पता है. I'm not talking about that. I'm talking about some basic formulas that you may need while solving questions related to series and parallel combination of resistances. So, as you know, जब आप सीरीज में कंबाइन करते हो and when you combine in parallel, definitely you know कि in series combination only one end is common. एक रजिस्टर लिया, एक टर्मिनल कॉमन किया, फिर दूसरा रजिस्टर, फिर दूसरा तीसरे को कनेक्टेड होगा, so on so forth. So, and of course when you have such kind of combination of resistances, current through each resistor is same, so I is constant. और ये important है, क्यों important है आपको समझेगा in a while. So I is same but potential drop across each is different, because potential drop will depend on how much resistance the current is facing, right? So as you know Ohm's law, V is equal to IR. I constant हो गया, मतलब जब भी मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो I will be using V proportional to R. Normally you say V is proportional to I, but when you solve problems related to series combination, you will have to use V proportional to R since current is constant overall. Then when you have parallel combination of resistances, and you know in parallel combination of resistances, potential drop मतलब voltage basically या फिर terminal potential difference, it is same across both of these resistances. And you already know कि current is not same, तो यहाँ पे क्या same है, V same है. तो जब parallel combination के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो V will be proportional to I, because right, because तो हाँ, तो I चेंज हो रहा है लेकिन V कांस्टेंट है, तो V is equal to IR. V by R is I, तो I is proportional to 1 by R, क्योंकि V कांस्टेंट है. Good, good. Then if you are asked some question related to power, and you know power is I square R, but I is constant in series combination, तो P is proportional to R. मतलब पावर का रेशियो पूछा होगा तो P1 is to P2 is to P3 will be equal to R1 is to R2. सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो. और again as you know P is also V square by R, क्योंकि P is I square R, I is V by R, तो V square by R मतलब in parallel combination P is proportional to 1 by R. मतलब जब रेशियो पूछा जाएगा P1 is to P2 तो ये आएगा आपका R2 is to R1, राइट, या फिर 1 is to 1 upon R1 is to 1 upon R2, जैसा लिखना है वैसा लिखो, इट्स ओके. 1 upon R1 is to 1 upon R2, correct? This is important. This is important for you to know beforehand, क्योंकि फिर बाद में हम क्वेश्चन में लिखेंगे P is equal to I square R, तो I is V by R, तो वो सॉल्व करेंगे V square by R square into R R कैंसल, फिर हम बोलेंगे कि ठीक है V कांस्टेंट है तो P is proportional to 1 by R, वेस्ट ऑफ टाइम. So you should know what happens exactly in series combination. Good. Then of course if I connect n resistors in series, I am going to have equivalent as R1 plus R2 up to Rn, and definitely of course अगर सारे के सारे
रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम होगा तो फिर R प्लस R n टाइम्स, मतलब n टाइम्स ऑफ R विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, तो सिंपल सा केस है। और यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन n टाइम्स, तो n बाय R जो भी होगा n टाइम्स। तो बेसिकली अगर सारे के सारे n रजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी तो 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R ऐसा आपका आएगा n बाय R। तो R इक्विवेलेंट आपका बन जाएगा R बाय n। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं हमारे पास 3 रजिस्टर है जिसकी वैल्यू सेम है रेजिस्टेंस की, तो उसको पैरेलल में लगाना मतलब R बाय 3। तो अगर 12 12 12 के 3 पैरेलल में है तो 12 बाय 3 4 इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। बाकी तो हम लोग सर्किट एनालिसिस करते वक्त कर लेंगे, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, बाकी वी विल सी लेटर व्हाइल डूइंग सर्किट एनालिसिस। अब जब सर्किट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट एनालिसिस? इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करना है by finding out equivalent resistances. If I have 10 resistance, but we know that कि 10 resistance की जगह पे सिंगल में भी काम हो सकता है हमारा, तो why do we use 10 resistances then? So I want to simplify that particular circuit. हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है हमको। पहली फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन योर माइंड इज कि ये इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? तो देयर आर टू मेथड्स। सो मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहला जो मेथड है वो बेसिकली रिडक्शन मेथड होता है, which is called as successive reduction as well. Method of successive reduction easy है, बहुत easy है successive reduction। तो बेसिकली इसमें क्या करोगे, ये कब अप्लाई करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कब यूज करना है? ये तब यूज होता है जब आप इजीली रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, इस ब्रांच के 3 सीरीज में है, फिर वो एक के साथ पैरेलल में है, सो ऑन सो फोर्थ। तो सक्सेसिव रिडक्शन तभी यूज होता है व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई which resistances are in series and which are in parallel. एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मैं बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। तो और ये बुक में जो वैल्यूज दी है इट इज जस्ट रैंडम वैल्यूज, सो यू कैन चेंज वैल्यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज यू वांट। तो हमारे पास दो टर्मिनल है ए और बी एंड यू हैव अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क made up of only resistances, because for the timing we'll start only with resistances, and you have a resistance here, then you have a resistance here, then you have a resistance over here, ऐसा चलता रहेगा, then you have a resistance over here, and then you have a resistance over here, so on so forth। तो ऐसा आपके पास resistance है, फिर again you have some resistance connected to 1 2 3 दिस ब्रांच ऑल्सो, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं भी करता तो भी फर्क नहीं पड़ता, एनीवेज डजंट मैटर रियली। तो फिर हम लोग यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं अल्टीमेटली यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज। मैं सिर्फ यहाँ पे इसको आर 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 एंड आर और अंदर के सारे 2R 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 बोल देता हूँ। When I say that if you are able to identify series and parallel combination of resistance, मतलब you are able to identify junction points, क्योंकि करंट स्प्लिट जंक्शन पे ही होता है, अगर जंक्शन है तो ही पैरेलल होता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, या फिर आई मीन दिस इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट विथ, यहाँ पे करंट का स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेट वे फॉर करंट टू गो,
तो इसका मतलब ये श्योर है कि ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। तो सबसे पहले ये दो सीरीज में है तो ये R प्लस R 2R, which means that I can simplify this circuit and we can get rid of two resistances and we can put a single resistor of 2R value here. Then what we see is कि ये दो 2R इन दो कॉमन पॉइंट्स में है, मतलब these two are in parallel now. फिर आप इन दो 2R को हटा के एक सिंगल लिख सकते हो which is 2R/2, that is R. So what you can do is you can just simplify this. You can get rid of these two and you can have just a single resistor of value R here. Then again you can see कि ये R और ये R जो है ये सीरीज में हो गया, राइट? तो फिर अगेन what you can do is ये R और ये R इन दोनों को आप एक सिंगल रजिस्टर जिसकी वैल्यू 2R होगी उससे रिप्लेस कर सकते हो। So what you can do is you can effectively, you can just get rid of this part. फिर आप बोलोगे कि ठीक है, let us put a register with value 2R, right? फिर ये 2R और ये 2R वापस से पैरेलल में है। तो this is how you can do step 1, step 2, step 3 and step 4 and so on. तो ऐसे सिंप्लीफाई करते जाना। आई एम नॉट गोइंग टू फाइनल स्टेप, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो आप खुद कर लो, और ओरली भी होता है। 2R 2R पैरेलल R, मतलब ये R हो गया टोटल दोनों मिला के, वो R और ऊपर एक और R सीरीज में 2R, फिर 2R और 2R पैरेलल में वापस R, फिर R और R वापस से 2R, फिर 2R वापस पैरेलल में R, फिर आखिरी में R और R। ये सब हटा के यहाँ पे सिंगल R बचेगा, फिर R और R सीरीज, 2R और ये एक और R पैरेलल, 2R 1/R प्लस 1/2R, या तो फिर आप 3/2R। तो ये ओरली भी होता है। तो दिस इज वन मेथड, सक्सेसिव रिडक्शन, राइट? अब नॉर्मली मोस्टली यहाँ पे सक्सेसिव रिडक्शन के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इन एग्जाम्स लाइक नीट it is more likely they will not ask you questions on this. When I'm saying not ask you, मतलब it is in comparison with the next method. तो दूसरे मेथड के आने के चांसेस ज्यादा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। ओके, गुड। तो अदरवाइज बोलोगे कि यू सेड कि नहीं आएगा और आ गया, तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। गुड। तो नेक्स्ट मेथड इज इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड करना होता है, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, तो फॉर एग्जांपल नाउ यू हैव सम काइंड ऑफ, बोल सकते हो कि एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल के हर एक साइड पे एक रजिस्टर है, ओके। देन दिस इज नॉट ओनली द थिंग, बाकी यहाँ पे बाकी भी जगह पे रजिस्टर्स लगाए हैं, तो आई कैन मेक इट मच मोर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा करते हैं, लेट अस मेक इट लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। फिर इसको हम लोग सर्कल पे भी सर्कल के लिए एक्सटेंड कर लेंगे ये आइडिया। So we have such a quadrilateral here. Then I will join opposite points here. कोई बात नहीं, good enough, good enough.
तो ऐसा है. And then I'll connect the register here, one here, one here, one here and here. यहाँ भी, यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ भी कनेक्ट करेंगे, one here, one here. So we are putting registers at all these places. तो let us say सबकी वैल्यू R है. वैसे I am not going to simplify this completely because this is something that we will be doing while doing numericals. The idea is just that you should know what is the method, how to solve this. So तो पहली चीज ये है that you need to identify. यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस. तो दिस इज पैरेलल एक्सिस. और एक दूसरा एक्सिस है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस, समथिंग लाइक दिस. ये परपेंडिकुलर एक्सिस है. Perpendicular axis. Let me give some names, numbers 1, 2, 3, 4 and center O. Normally parallel axis के जो भी points हैं 1, 0, 3, they are not at the same potential. They can never be at the same potential. तो parallel axis के जो points हैं they can never be at same. लेकिन जो perpendicular axis के points हैं 2, 0, 4, they can be, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि they will always be, but they can be at same potential. So 2, 0, 4, they are on the perpendicular axis and they can be at same potential. Same potential. And 1, 0, 3, they are on the parallel axis. They can never be at same potential. Right. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा पैरेलल एक्सिस है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर उस पैरेलल एक्सिस पे जो 3, 4, 5 पॉइंट जो भी होंगे, जंक्शन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ उसमें, या फिर व्हाटएवर इट इज, तो इफ दे आर नॉट एट सेम पोटेंशियल, दैट एक्सिस पैरेलल एक्सिस. कुछ पॉइंट्स है, अगर सपोज बोला होता पोटेंशियल एट 1, 0 एंड 3 आर इक्वल, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर एक्सिस बोलेंगे हम उसको. सिंपल. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से एक्सिस पे पोटेंशियल सेम है. जिस पे सेम नहीं है उसको फोल्डिंग एक्सिस लेके सर्किट को फोल्ड करना पड़ता है. कहाँ पे सेम नहीं है? पैरेलल एक्सिस पे. तो फोल्ड इट अबाउट पैरेलल एक्सिस, तो फोल्ड करना पड़ेगा. फोल्ड करने का मतलब क्या होता है? लेट मी ट्राई इफ वी कैन फोल्ड इट. ओके, बट एनीवेज, तो मुझे पहले कुछ और नाम देने पड़ेंगे नंबर. लेट्स से दिस इज 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8. फोल्ड करना मतलब 5 और 6 को मैच करना. आई एम फोल्डिंग अबाउट पैरेलल एक्सिस, मतलब आई एम पुटिंग 5 and 6. येडा येऊन गेलाय का तो फिजिक्सचा अभ्यास करून करून माझं येड येऊन जातं म्हणून मी फिजिक्सचा अभ्यास करत नाही. 7 and 8 मागची आदरची मेहंदी दाखव. आवडली का तुला? यहीं से समझ में आ रहा है. देखो ये जो रजिस्टर है R और एक मी करून दिल ना ते रात्री माझ्याकरता सोडून गेली. उनमें ऑलरेडी एक टर्मिनल कॉमन था. जब मैं फोल्ड करता हूँ 7:30 ला चालले जाऊ ना. which means आताच जाऊन येऊ, सकाळी नको तू पार्लरचं नाटक. सकाळी जायचं राहू आपण. आता पप्पानी आता काही एवढं कोणी बघणार बी नाही आपल्याला. आताच जाऊन फोल्डिंग क्या होगा? तो आई विल ड्रॉ दैट. जेवणचं काय बनवशील? बाहेर फोल्डिंग व्हाट विल हैपन? इधर बाजरे भी चांगले भेटतात नाही का? हमने फोल्ड कर दिया.
फोल्ड कर दिया मतलब पैरेलल एक्सिस, दिस इज पैरेलल एक्सिस, फोल्ड कर दिया हमने। तो नेट गेलो। यहाँ था पॉइंट नंबर 1, ओके। आर अगेन आर, ये आपने ज्वाइन कर दिया 5 और 6 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 विल ओवरलैप विथ, अटेंडन्स घेत होता नेमकं तेव्हा एंट्री केली मी तिथे। ये 4 जो है दिस विल ओवरलैप विथ 2, है ना, तो उसको फोल्ड कर रहे हो आप। और ऑफ कोर्स फिर ये जो रजिस्टर्स है इसका भी आपको देखना पड़ेगा। तो यू शुड बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो 5 और 6 कॉमन हो गया तो वापस से ये आर और ये आर जो है दे आर बिटवीन 0 एंड 5 6, तो ये दो भी पैरेलल में गए, राइट, so they are also in parallel. So what you can do is ये आर आ गया और एक आर आ गया, ये आ गया 0 पॉइंट। रुद्राक्ष काय झाला गं? पळून गेलाय का खून करून? ओके, so we have solved this part. एक रस्त्यावरचा माणूस त्याचा वाला तो हा होता, चार Same will be true for मला this त्याच्या घरात काम particular करायला square, लावा बुवा, असं म्हणून तिला भेटला Right? तिने त्याच्या वाला पोलीस सर्जरी केली, है ना, त्याच्यासारखं त्याला तो दूसरे के लिए भी बनवलं, होगा केलं. सेम टू सेम ऐसा। ते लोरीच्या दिवशी होता ना ते त्याने त्या पाठीवर तात्पुरते वळण Copy. लावले ते हा. तारांच्या हम्म. तिच्या जवळ संताप करायला गेला होता ना, हम्म. तेव्हा त्या डुप्लिकेट त्याच्या डोक्यावर मारलं, तेव्हापासून तो गायब होता आणि त्याच्या जागेवर यहाँ हा पे काम करत. टर्मिनल्स का नंबर चेंज होगा 7 and 8. ओह. So this is 7, प्रिशाला माहिती का ते? आता माहिती पडलं तिला, कारण त्याच्यात और यहाँ पे था, तिला if I am not समजलं wrong, की रुद्राची सही अशी आहे बुवा, हा डुप्लिकेट Right. है ना, त्याचा अर्ज असा आहे, गुड इनफ। तार असा अब आहे, सिर्फ क्या हम्म। बचा कि असा आहे, 4 और याचा 2 आहे. को ओवरलैप। हम्म. तेव्हा तिला समजलं, मग तेव्हा ती जेलमध्ये When you बघायची. take this तेव्हा जेलमध्ये 4 बघायची and put त्याच्या it पाठीला here, ना हम्म. तिळे आहे ना, हम्म. this one and जेव्हा तो this पलंगावर one तिच्या जवळ झोपला होता महिमाजवळ, त्याच्या will पाठीवर be दिसला नाही ना 5 तिला. 6 हम्म. and 2 4 ते आता याच्या पाठीवर बघितला तिने. और सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे जो है these two will again go in parallel. जेलमध्ये कोणता रुद्राक्ष खरा आहे की खोटा? जेलमध्ये खरावाला गेला बापाच्या खूनच्या जुलमध्ये, यहाँ पे 2 will be in आणि ती parallel. चुकीचं कोणाला समजत होती? ती महिमा सोबत जो झोपलेला होता तो, और आपने इसको महिमा सोबत जो झोपलेला होता तो खोटा और आला होता ना। I mean 2 और 4 को आपने यहाँ पे कॉमन किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। This is how it will look like. आणि खरा रुद्राक्ष केव्हा आलाय मग? त्याला शुद्धी आली ना, Correct. Clear है? मारून त्याला एकदम फोल्ड किया है। जखमी करून. Now all where R and R. तो ये दो R इंटरेस्टिंग आहे ना गं, पण मी कधीच बघितलेलं नाही डायरेक्टली, कधीच बघितलं माहिती मी तुला ते महिमा तिचं ते भांडण होतं ना, ते महिमा तिला निघा दाखवते त्या दिवसाचं बघितलेलं, त्याच्यानंतर बघितलंच नाही. 2 फिर लय मेहनत लागली मला त्याची लत सोडवायला. 2 यहाँ वापस से आपके पास R/2 1 0 3, यहाँ पे भी R/2, यहाँ पे भी R/2, right? Now these two are in series, these two are in series. R/2 plus R/2 R. इसका मतलब अब ऐसा हो गया, ये आपका 1 पॉइंट था, ये R/2 है, फिर यहाँ पे R/2 प्लस R/2 R है, नीचे R है, वापस से यहाँ पे आपके पास R/2 है, ये आ गया 3 टर्मिनल, right? Then this is R/2 and
अगेन इन पैरेलल वापस r/2 r/2 और ये वापस r/2 then finally 3r/2 because this are in series. तो ऐसा उसको सॉल्व करते हैं, राइट? सिर्फ ऐसा है क्या? नहीं, यू कैन डेवलप योर ओन मेथड, जो मैंने खुद के लिए किया था लॉन्ग बैक. आई बिलीव इन ब्रेकिंग द सर्किट एंड मेकिंग इट इजी. हम इसको यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा. ब्रेक इट हियर, वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. आई एम जस्ट गिविंग यू हियर. इफ आई ब्रेक इट हियर, लुक, ये दोनों तो सीरीज में आ गया पहले. हाँ, तो वैसा भी चलता है, पर ब्रेक कहाँ करना है वो इंपॉर्टेंट है. दैट आई विल बी टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल. तो हम एक सर्कल ले लेंगे. तो ये सर्कल ही है बेसिकली. दिस इज सर्कल इटसेल्फ. अच्छा, डजंट मैटर इफ यू आर ड्राइंग दिस और इफ यू आर डूइंग इट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. आप सर्कल ले सकते हो, फिर आप सर्कल पे भी यहाँ पे लगा. यू कैन जस्ट डू इट दिस वे आल्सो, है ना. यू कैन डू दिस वे आल्सो, आपके ऊपर है. आप सर्कल ड्रॉ करो, स्क्वायर ड्रॉ करो, जैसा आपको पसंद है वैसा ड्रॉ करो. तो आई टेल यू कि कहाँ से ब्रेक करना है, क्योंकि वो मेरे लिए कंफर्टेबल होता है, तो आई डू इट दैट वे. बट वो ट्रायल एंड एरर के बाद आता है. तो आई हैव डन इट मेनी टाइम्स टू फाइंड आउट वेदर आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर विद दिस मेथड और विद दैट मेथड. ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो ब्रेक कर दो. कहाँ से ब्रेक करना है वो इम्पोर्टेंट है. ओके, दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. हम बाद में देखेंगे उसको. That's all you need to know about these two methods of simplifying circuit. So far we have spoken about resistances in series or in parallel, but you can connect source of EMF, matlab cells, in series or in parallel. So let's see combination of cells. There are two combinations of cells, again series and parallel. Both of them have their own advantages and disadvantages. जब आप cells को series में connect करते कॉफी हो, पीतो आप सर? I have one cell with EMF E1 and I'm going to tell you what is EMF. पीतो. और जब series में cell connect होता है, मी सांगते तुला. negative terminal of one cell is connected to आम्हाला विचारत बी नव्हतं पिता का other. That is a series combination. You cannot connect negative of one to negative of other because they will start opposing each other. There will be no current flow. तो इस केस में क्या होता है कि if I have 1.5 volt, two cells of 1.5 volt, so effective potential difference turns out to be 3 volt. मतलब in short, you can get large potential differences by connecting small potential difference cells in series. मैंने 1.5 के 10 लगा दिए तो 15 वोल्ट मिल गया, राइट. एडवांटेज इसका ऐसा है, एक तो लार्ज पोटेंशियल मिल सकता है, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है. दूसरा, अगर एक भी सेल खराब हुआ तो इजीली स्टेप कट करणार आहे की स्ट्रेट करणार आहे? बट डिसएडवांटेज, एक भी सेल खराब हुआ तो सर्किट बंद, इट विल ब्रेक ओपन. सर्किट ओपन हो गया, एक भी खराब हुआ तो इट विल स्टॉप वर्किंग. Then I hope that you know what is EMF and what is the difference between मस्त केला का प्रतिने फेशियल? and potential difference. हात गुलाबला तुझा. So I would like to know from your side. सगळ्यात कमी आता अशुचा लागतो तो नंबर माझा. So normally what happens is, for example, I have a conductor. As soon as I connect cell to this conductor, negative charge starts flowing from this cell and it will start from negative terminal and it will go towards positive terminal. अपने आप तो जाएगा नहीं,
we have to spend energy, like we have to do work. So total energy supplied for unit charge क्यों बोल रहा हूँ, we can send negative charge from negative terminal to positive terminal, या फिर positive charge unit charge from positive to negative. The total amount of energy required to circulate unit charge once around the complete circuit, that is EMF. एक यूनिट चार्ज को, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक बार सर्किट कंप्लीट करवाने में जितना वर्क डन होगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज EMF. अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो सेल है, मान लो ये मेरे पास सेल है, इट इज नॉट बैटरी, मान लो सेल है, ये किसी मटेरियल से बना होगा, इट हैज सम कंपोजिशन. वो जो आप AAA का सेल लाते हो, इट आल्सो हैज सम कंपोजिशन, जैसे कि जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द क्वेश्चन अराइजेस कि जिस चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ कहाँ से निकल रहा है, वो अंदर से आएगा. अंदर से आएगा मतलब वो खुद के रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करना पड़ेगा. तो जो भी एनर्जी हमने स्पेंड की वो दो डिफरेंट वेज में यूज हुआ है. एक तो सेल के खुद के कंपोजिशन, खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में. दूसरा जो एक्सटर्नल रजिस्टर है या एक्सटर्नल कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में. तो टोटल एनर्जी स्पेंट इज EMF. So total energy includes overcoming its own resistance and external resistance. And जब हम बोलते हैं potential difference, that is basically energy spent to send unit charge once across external conductor या external resistance. तो external resistance को overcome करने में जो energy spent हुआ, that is potential difference V. और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ओवरकम करने में जो लगा, दैट इज EMF E. राइट. तो ऑब्वियसली EMF E इज ग्रेटर देन V. तो ऑब्वियसली EMF E विल बी V. क्योंकि V क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R. बाय द वे, किसी भी सेल के साथ जब आप ऐसा देखोगे, दिस शुड बी स्मॉल r, स्मॉल r. जब ऐसा देखोगे तो दे आर टेलिंग यू बाय पुटिंग दिस डॉटेड स्क्वायर रेक्टेंगल व्हाटएवर इट इज कि ये सेल का इंटरनल EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस है. राइट. अब ये करंट सर्कुलेट करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे V और इसके अक्रॉस होगा VR. तो टोटल EMF विल बी V प्लस VR. Energy spent to overcome external potential, energy spent to overcome internal potential. तो ओहम्स लॉ पता है ये हमको, IR प्लस I स्मॉल r. तो IR प्लस R. मेहंदीलाच ऑलरेडी कलर आहे, दुसरं काही लावलं भी नाही ना या आपण तरी फिर चालेल. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकता हूँ यहाँ ओरिजिनल से, कलर आहे V मेहंदीला. इक्वल टू E माइनस VR और E माइनस I टाइम्स ऑफ स्मॉल r. यहाँ तक क्लियर. EMF is terminal potential difference minus current times of internal resistance. है that clear? अगर ये इक्वेशन समझा है, दिस वन E माइनस IR कहां से आया, तब जाके अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ समझेगा. तो EMF is कैपिटल V, सॉरी मतलब V प्लस VR, दैट इज I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r. अब जब मैंने N रजिस्टर्स को, N सेल्स को, नॉट रजिस्टर्स, N सेल्स को सीरीज में लगाया है, राइट. तो इन सब का EMF समेशन ऑफ ऑल द E's will be summation of all the V's plus summation of all the VR's, right. Summation of all the EMF is summation of V plus I सब में से सेम होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है.
इसलिए समेशन के बाहर, आई समेशन के बाहर, क्योंकि आई सबके लिए सेम है। जरूरी नहीं आर सबके लिए सेम होगा। हु सेड? हो सकता है मैंने दो सेल को लगाया सीरीज में, एक कॉपर का बनाया एक जिंक का बनाया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, बट करंट इज सेम बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। इसका मतलब आई कैन राइट दिस summation V equal to summation EMF minus summation I summation R, right? What is summation V? This is total terminal potential difference. मतलब how much will be the potential difference that appears across these two terminals AB. क्योंकि ए बी के अक्रॉस अपीयर होना है तो खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के बाद बचेगा ना। मतलब अगर आप बोलोगे कि लेट मी ड्रॉ अ कंप्लीट डायग्राम फॉर यू टू, मैं ए और बी के अक्रॉस मेजर करना चाहता हूं तो पहले तो ईएमएफ E1 मतलब सेल 1 को खुद का इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ेगा। सिमिलरली E2 को भी तो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो भी अपीयर होगा दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल नॉट बी ईएमएफ। पहले सेल का ईएमएफ राइट, उसका रेजिस्टेंस भी है तो उसको ओवरकम करने के बाद क्या बचा, यहाँ पे V1 बचा। दूसरा सेल का खुद का रेजिस्टेंस ओवरकम करने के बाद क्या बचा, V2 बचा। तो ए बी के अक्रॉस क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का सम। इसलिए मैंने बोला कि ये कैपिटल बी जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस इज टर्मिनल पीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपने 10 सेल को लगा दिया सीरीज में और आप बोल रहे हो कि पहला एंड और 10 के बाद का एंड उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल। काढून का मम्मी मेहंदी आता है। हर एक सेल का ईएमएफ अगर 2 वोल्ट है तो आप बोलोगे 2 into 10 20, नहीं 20 से कम, क्योंकि खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस तो ओवरकम करना राहील अजून कस राहील असं त्याच्यामध्ये उतरून जाईल खाली। This is series combination. Then parallel combination is little complex. ये easy था, little complex. तो जब हम जितने भी हमारे पास सेल्स होंगे उन सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को कॉमन और नेगेटिव टर्मिनल को भी कॉमन ऐसा कर देते हैं, that combination of cells is called as parallel combination. So you are connecting all the positive terminals together and you are connecting all the negative terminals together. Advantage उद्या क्लासला जावं लागेल 10 20 30 सकाळी 2 3 4 नाही उद्या खराब क्लास हो आहे गया उद्या रविवारी ना सर्किट विल स्टिल वर्क। ए बाबा लगे डिंचक आपके डिचिंग जो डिचिक बैटरीज डिचिंग होते हैं डिचिक जैसे डिचिक। इन्वर्टर का बैटरी उसमें सेल्स आर इन पैरेलल, नहीं तो एक भी सेल खराब हुआ तो इट विल स्टॉप वर्किंग। डिसएडवांटेज 2 लगाओ 200 लगाओ 2000 लगाओ 20000 लगाओ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल नेवर इंक्रीज, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के अक्रॉस एक सेल देगा उतना ही 1 लाख सेल भी उतना ही देंगी। तो अगर मैंने 2 वोल्ट के 1 लाख लगा दिए तो भी 2 वोल्ट, राइट। सिर्फ इतना है कि करंट विल बी डिफरेंट इन ईच ऑफ दिस ब्रांचेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द EMF of each cell, right? Then what we want to know is if I connect n cells in parallel, what is total current in circuit, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। You should know one thing कि कभी भी करंट कब फ्लो होता है, करंट तभी फ्लो होता है जब 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब B1 और B2 दे आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स एंड टू बी प्रिसाइज
B1 is at higher potential than B2, इसलिए करंट will flow from B1 to B2, राइट। मैंने अगर सेल A2 को निकाल भी दिया तो भी करंट फ्लो होने वाला है, राइट। बट इन एनी केस करंट जंक्शन पॉइंट पे आके स्प्लिट होगा I1 और यहां जाएगा I2, राइट। लेट अस से B1 और B2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V, राइट। बट वी नो व्हाट इज V, ऊपर E1 माइनस I1 R1, राइट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, मतलब I1 इक्वल टू E1 माइनस V बाय R1। I am telling you each step because you may need these things. So then similarly you will have I2 is equal to E2 minus V upon R2, right? Then total current you already know is I1 plus I2, इसका मतलब E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2, इसका मतलब I can further simplify it as E1 by R1 plus E2 by R2 minus V outside 1 by R1 plus 1 by R2, मतलब I can write this as V1 by R1 plus 1 by R2 is equal to E1 by R1 plus A2 by R2 minus I। इसका मतलब you can just cross multiply this, तो मैं टाइम बचाऊंगा अपना। यहाँ आपका आएगा R1 plus R2 अपॉन R1 इंटू R2। सो जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो यू विल बी डूइंग व्हाट, ये आएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब यू आर जस्ट टेकिंग दिस टू द राइट हैंड साइड, माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डू नॉट फॉरगेट कि इसमें कब क्या काम में आ जाएगा पता नहीं, कैंसल कैंसल, एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू नीड टू नो हाउ टू डू थिंग्स, क्योंकि ये कैसे फॉर्मूला बनते हैं, कैसे हमको करना होता है, ये सब पता होना चाहिए। अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I टाइम्स ऑफ R1 R2 बाय R1 प्लस R2। द होल पॉइंट अंडर डिस्कशन वाज कि मेरे पास 10 सेल है, 15 सेल है, 20 सेल है, 30 सेल है, हम सबको हटा के सिंगल सेल लगा सकते हैं, उसको बोल देंगे इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब जो भी मैंने 2 सेल दिखाए थे, आई कैन से कि मुझे नहीं लगाना 2 सेल, आई वांट टू पुट अ सिंगल सेल, है ना। तो ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, तो मैंने B1 और B2 के बीच में आई कैन कनेक्ट सिंगल सेल जिसका इक्विवेलेंट EMF होगा E इक्विवेलेंट और जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, और मुझे पता है वी कैन राइट दिस एज V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर ही कर लेते हैं। कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे E इक्विवेलेंट टर्न्स आउट टू बी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू, नहीं R1 प्लस R2 था क्या, प्लस R2 था, ठीक है जो भी था, राइट, व्हाटएवर इट वाज, आई डोंट रियली रिमेंबर क्या था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है जो भी था, इट्स ओके, करेक्ट, गुड। तो अगर आपको पूछ लिया होता एग्जाम में कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट EMF ऑफ 5 सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये फॉर्मूला ऐसा डिराइव करना, ये 2 का है, हम लोग फाइनल पे आने वाले हैं, तो हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सिमिलरली अगर R इक्विवेलेंट कंपेयर करोगे तो ये तो जोक है, क्यों जोक है,
अभी पैरेलल में है तो सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन पता था कि नहीं हमको? पता है, तो फिर इट इज जो, तो ये R1 into R2 upon R1 plus R2 नहीं भी पता होता तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on so forth. Then important is this, that if I divide these two, क्योंकि मेरा ultimately aim था to find out current. What is current? V by R मतलब E by R मतलब E equivalent upon R equivalent. तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये इधर प्लस होना चाहिए था, which I forgot to write, अपॉन R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2. हाउ डू आई नो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था? डायमेंशनली मैच ही नहीं होगा अदरवाइज। तो अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन हो गया तो इट इज नेवर गोइंग टू बी डायमेंशनली करेक्ट। कैसे? E इक्विवेलेंट, E इंटू आर, नीचे R होगा कैंसिल होगा तो E इक्वल टू E होगा, E R अपॉन आर स्क्वायर, तो E बाय आर इज करंट। तो व्हाट यू आर डूइंग इज एक साइड पे EMF लिख रहे हो, एक साइड पे करंट लिख रहे हो, तो वो डायमेंशनलिटी भी ध्यान में रखना चाहिए। कैंसिल एंड कैंसिल। हाँ, फिर अभी सिंप्लीफाई करो, फिर E1 R2 अपॉन R1 R2 कैंसिल कैंसिल, प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 कैंसिल कैंसिल, मतलब फाइनली आपको मिल गया E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट एज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ऐसे अगर 5 से लोगे तो बस E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस E4 बाय R4 करते रहो, राइट? So this is parallel combination of cells. Resistances अलग, यहाँ पे सेल है। Good, good. Then next thing that we need to do. Now you are going into 12th standard current electricity. अभी तक 11th ही चल रहा था हमारा। 12th current electricity is easier than 11th, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स लॉज की, और इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। किरचॉफ्स के दो लॉ है, फर्स्ट लॉ या उसको बोलते हैं करंट लॉ या उसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, सिंपल है। तो किरचॉफ्स का जो पहला लॉ है विच इज करंट लॉ, इट इज सिंपल, वेरी सिंपल थिंग। इट इज टेलिंग यू दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड। मतलब अगर मेरे पास एक पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट मतलब a point where there are too many ways, for too many मतलब दो से ज्यादा, है ना? there is this point from where current can go in different direction, और ये रेलवे जंक्शन ये सब इसी से आता है। What is junction? धुले is not a junction, मतलब क्या? धुले में वन वे ट्रैफिक है। 40 बजे जंक्शन मतलब क्या? 4 डायरेक्शन से आके ट्रेन वहां पे मिलती है। जंक्शन मतलब करंट कैन गो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम हियर, जंक्शन पॉइंट। तो ऐसा है कि इफ द करंट इज कमिंग, सपोज I1 I2 इनकमिंग है, I3 I4 I5 इज आउटगोइंग, तो पहला लॉ क्या बताता है? आपको बताता है कि समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0, मतलब चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। उस पॉइंट P पे, जंक्शन पॉइंट P पे चार्जेस आके जमा नहीं होने वाले, दे विल कम एंड गो, राइट? इसका मतलब ये है कि सारे करंट्स को मैं पॉजिटिव नहीं ले सकता। इन सारे करंट्स को हम लोग पॉजिटिव नहीं ले सकते। जो इनकमिंग करंट्स है वो पॉजिटिव होंगे, जो आउटगोइंग करंट्स है वो नेगेटिव होंगे। ये कन्वेंशन बोलते हैं इसको, साइन कन्वेंशन। तो यू कैन से समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0, मतलब I1 plus I2, बिकॉज I1 and I2 आर इनकमिंग करंट्स एंड अदर्स आर आउटगोइंग करंट्स। तो minus I3 minus I4 minus I5 equal to 0. I would better say summation, मतलब I will extend one step. I will say summation of incoming current equal to Oh my! ये ज्यादा बेटर है, सिंपल है ये।
या फिर समेशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउटगोइंग. दिस इज जंक्शन लॉ. दूसरा लूप लॉ, वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ. व्हाट इज दिस? ये और वो सीरीज कॉम्बिनेशन ये सेम ही चीज है. सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्लोज्ड लूप नहीं लिया था, यहाँ पे क्लोज्ड लूप ले रहे हैं. तो समेशन of all the EMFs and all the potential drops in a closed loop of electrical circuit is 0. मतलब आपण गोंधळला किती तारखेला जाऊ मम्मी? अभी हमको किती पता तारखेला नहीं. जाऊ गोंधळला? आपको पता तो होगा. क्या क्या पता होगा आपको कि मैंने अगर एक सर्किट में 2 सेल लगाए हैं, 24 ला चालले जाऊ ना. कंपोनेंट्स लगाए हैं, हाँ तो इनका एनर्जी कौन यूज करने? आवरीला बी त्या आंटीला काही काही होऊन जाईल ना. तो फिर वो किरचॉफ्स लॉ क्या लिखते हैं? Summation of all the EMFs, है ना? या फिर जैसे भी आपको लिखना होगा प्लस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस समेशन ऑफ ते पप्पांवर नाही घेतलं का आपण मग तुला तिथं काम is करायचं equal to असं 0. घेऊन द्यायला. आई मीन ऑफ कोर्स यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V1 और यहाँ पे कितना होगा V2. व्हाट दैट इज E1 plus E2 plus V1 plus V2 is 0. Actually writing this way is wrong. क्यों wrong वो आगे समझेगा. But normally you can say E1 plus E2 is equal to. मला 7 वाजले मला केव्हा बोलूच राहिला कधी. तोंड मी दुखत नाही घसा बी सुकत नाही ना पाणी बी पित नाही ना गं तो मम्मी. Just the way of thinking. बसून बसून मला ताण लागून जाईल तर ताण बी लागत नाही. ये V's जो है, these V's are nothing but मी बी नाही पिली Ohm's law. I पण आपण बोलत नाही ना एवढं. तो कंटिन्यू बोलून राहिला फिजिक्स बोलतोय तो. तो 2 सेल लगाए थे जिसके पास एनर्जी थी. गंभीर विषय त्याचा थोडा. That is what it is. फिजिक्सचा माणूस अभ्यास करतो तरी पाण्याची एवढी ताण लागते तो शिकवतो अजून. 3 होंगे तो 3 करेंगे, 4 होंगे तो 4 होंगे करेंगे. Summation of all the EMFs plus summation of all the potential drop in a closed loop. तिथे फॅन मध्ये धरून बसता हात निघतं. इसके भी कर. नाही मला थंडी वाजते. तो take some network just to tell you. एक नेटवर्क लेते हैं, 2-3 सेल लगा देते हैं. Let us say one cell is here with EMF E1. This हा resistance जास्त जाड करून टाकला ना ते not पागल. internal resistance of course. I am not talking about internal resistances for the time being here. हम लोग internal resistance मेहंदी को बघ ना फिलहाल हे नहीं बघ ना देख केवढी रहे हैं. केलेली यहाँ पे एक और चौड़ी. सेल है R2. हे ना Then चांगलं resistance दिसत आहे ना equal. ते. Then your resistance R4 over here. ती आवडली Then मला you खूप have a जास्त. resistance किती R3 गोड in this दिसते. branch. Then you are connecting some cell E2 of बघू. E2 नाही over गं येडी here. चांगली काढली ना. Then you have पुढच्या another हाताला किती छान resistance काढली. R5 over here. तिला बी घरी लेट होतं. Then let's say कि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, doesn't matter really. तो किरचॉफ लूप लॉ लगाने के लिए तुझे आपल्या पप्पांसारखंच आहे ना. पप्पा नसले का तेव्हाच बाहेर पडते ते. How many loops are here? Wrong. पण असं काही नाही की आपल्या पप्पा कसं बाहेर गेला का आपल्या पप्पा बद बद बोलतात. ये एक आपले लूप, पप्पा आपल्याला ऍक्च्युअली ये एक अभ्यासामुळे लूप, बोलतात. ये बाहर का पूरा एक लूप. There are 3 loops. Good, good. There are 3 loops. अब मैं जब ऊपर की लूप की बात कर रहा हूँ, तो you have to decide कि आपको ट्रेस कैसे करना है. You can go clockwise or you can go anti-clockwise. It is your wish. आपको clockwise जाना है ट्रेस करने के लिए. ट्रेस करना मतलब हे लेक्चर मला पुन्हा बघावं लागेल. मेरी मर्जी, मैं ऐसा जाऊं कि ऐसा. अल्टीमेटली तो मैं ट्रेस कर रहा हूँ, राइट. तो मुझे सर्किट को ट्रेस करना है. तो आई कैन गो एंटी क्लॉकवाइज और आई कैन गो क्लॉकवाइज, डिपेंड्स. मान लेते हैं उसको नाम देना पड़ेगा ए बी. दाखव इकडे मेहंदी जाऊ. तो मैं जब ऊपर के लूप को ट्रेस कर रहा हूँ, कौन सी लूप को? ए बी सी डी. ये लूप नहीं, काढली ना. ए बी सी डी ए, ये लूप है. क्लोज करना पड़ेगा, तुला भी तुझे चिड्या माड्या चांगल्या दिसतात आणि डिझाइन मन काढून गेली तुला. कन्वेंशनल करंट की बात चल रही है. I1 नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये I2 है. B जंक्शन पॉइंट है तो I1 और I2 का एडिशन हो जाएगा. फिर C जंक्शन पॉइंट है,
मैं किती आप वाजता उडी मारली? ब्रांच में वापस चार चले ले. गए, नेटवर्क में वापस किती वाजता चालली गेली? तरी तिला घरून Right. फोन येऊन गेला. असा तुझा मला फोन आला का मी कशी पळत सुटते तिथून. अगर आप मी तर हातातलं जे बी राहतं ना ते मला खायला बसवतात, प्यायला बसवतात, मी ते बी उचलत नाही, डायरेक्ट सोडते आणि डायरेक्ट पळते मी. तो यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, असं राहतं ना प्रत्येकाचं. 4, 5, 6, तो जब मैं ट्रेस करने निकला ए से बी तो पहला रेजिस्टेंस लगा बीच एवढी में. नाही जात. You are त्या दिवशी मला ते tracing आम्ही in भेटणार होतो the म्हणून direction तेवढं of लेट केलं conventional नाही, current. एवढी The 4 potential कंटिन्यू drop जात is नाही. taken to be negative. सोडून 1 तास 1.5 तो तास आप लिखोगे minus I1 R2. If you मला are चहा tracing सुद्धा मी त्याने the हात जर चहा direction जर झाल्यानंतर तो चहा मी तिथं current, सोडून येऊन जाते. potential 2 drop 3 is तास मी तसा taken to be चहा सोडून येऊन negative. गेलेली. यहाँ गलती हुई तो आंसर कभी नहीं आएगा. फिर आप आ गए बी से सी में, फिर वापस से करंट के डायरेक्शन में ट्रेसिंग चल रहा है, I1 प्लस I2 इंटू R3. फिर C से D देयर इज नो ड्रॉप, नो रेजिस्टेंस. फिर D से A वापस से करंट की डायरेक्शन में हो, I1 R1. फिर बैटरी आ गई, सेल आ गया. तो सेल को जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेस कर रहे हो ना, तो EMF इज टेकन टू बी प्लस. तो प्लस E1 इक्वल टू 0. मैंने इसलिए पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. अभी वो डेफिनेशन वैसा है तो बोलना पड़ेगा मुझे, लॉ वैसा है, बट ईएमएफ पॉजिटिव तो पोटेंशियल ड्रॉप सारे नेगेटिव आएंगे. अगर ईएमएफ नेगेटिव तो पोटेंशियल ड्रॉप सारे पॉजिटिव. इन शॉर्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर ऐसा लिख रहे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव, E positives, V positives if they are on the opposite sides. If they are on the same side, equal to 0. E negative तो IRs positive, E positive तो IRs negative. इतना ही समझना है हमको, right? माझा ड्रेस प्लीज आंचल का आता त्यांना आठवण आहे का? करतो फोन मम्मी. बेटर फोन है. करतात त्याला. हम साइंस का unnecessary. नाही असंच फोन येत नाही का मला किंवा येतंय असं. Right. So we are not going into further किती वेळा details because I just want to tell you दिलं? sign असं convention. Two sign conventions. If you are tracing a battery from its negative to positive करतात. terminal, EMF is taken to be positive. If you are tracing a resistance in the direction of current, then the अरे potential टपली खायची का ग? बंद करणार आहे is मोबाईल. taken to be negative. Good. That's it. That's all you need to know. Then you need to know दुसरं पान. what is Wheatstone's bridge. और व्हीटस्टोन्स ब्रिज पे जब क्वेश्चन आते हैं नाही का गई? तो वापस से वही गड़बड़ होती है, ओवर कॉन्फिडेंस. तो व्हाट इज व्हीटस्टोन्स ब्रिज? व्हीटस्टोन्स ब्रिज अगेन ये आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है, राइट? देन आई विल कनेक्ट समथिंग हियर आल्सो. ठीक है, सिमेट्री नहीं हो, डजंट मैटर रियली हियर. गुड. देन you have some points A, B, C and D over here, and then here you have an external battery plus minus E. फिर यहाँ पे key है K. Then you have resistances and a galvanometer. ये आप बोलते हो R1, ये आप बोलते हो R2. This is R4, ये गलती होती है, ये R3. क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को ओपन कर दिया तो ये 4 आ गए आपके सीरीज में. क्वेश्चन कैसा आता है? यू हैव 2 ओहम, 4 ओहम, 8 ओहम, 20 ओहम इन सीरीज, देन यू आर मेकिंग व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. फिर लिखते वक्त क्या करते हैं? R1, R2, R3, R4. नहीं, ये R4 है, ये R3 है. तो ये गड़बड़ नहीं चाहिए. इफ यू डू दिस, -1, खत्म. ओके, तो यू नीड टू एग्जैक्टली नो R1, R2, R4, R3, राइट? गुड. अब यहां पे बीच में है गैल्वेनोमीटर. अंडर बैलेंसिंग कंडीशन. बैलेंसिंग कंडीशन मतलब
बैलेंसिंग कंडीशन मतलब देयर इज नो करंट टू गैल्वेनोमीटर. व्हेन यू से देयर इज नो करंट टू गैल्वेनोमीटर मतलब B एंड D आर एट सेम पोटेंशियल. ये इंपॉर्टेंट है. जो क्वेश्चन में डालने वाला हूं उसमें मैं B और D को सेम पोटेंशियल पे नहीं रखूंगा. मतलब यू कैन नॉट अप्लाई वेस्टोन्स नेटवर्क का बैलेंसिंग कंडीशन R1 upon R2 equal to R3 by R4 0 -1. ओके गुड. तो बैलेंसिंग कंडीशन मतलब पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D दे आर सेम. अब आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हो दोनों लूप पे. मैं वो नहीं करने वाला यहाँ पे. किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हो उसके बाद आपको मिलेगा R1 by R2 equal to R3 by R4. राइट. दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन मतलब नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मतलब B and D सेम पोटेंशियल मतलब resistance between B and D infinity so that there is no current. मतलब it is open between B and D. It is as good as saying कि B और D के बीच में कुछ है ही नहीं. राइट. या तो फिर इनफिनाइट रेजिस्टेंस है ऐसा भी बोल सकते हो. वेरी गुड. या तो फिर B और D सेम पोटेंशियल पे है ऐसा भी बोल सकते हो. राइट. देन देयर इज मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज इज नथिंग बट व्हीटस्टोन्स ब्रिज. नाम में ही है मीटर. मीटर मतलब 1 मीटर का वायर यूज होगा यहाँ पे. क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस. ओके. तो अच्छे से समझ लेना क्योंकि व्हीटस्टोन नेटवर्क और मीटर ब्रिज एक ही चीज है मोर और लेस का एक ही है वो. तो व्हाट यू हैव इज टू एल शेप्ड कॉपर वायर्स, कॉपर प्लेट्स. दो एल शेप्ड है कॉपर प्लेट्स C1 C2. उसके बीच में और एक है C3. लेफ्ट गैप में हम लोग हमेशा अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं. ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन बोला है तो बोला है. आप जो चाहो वो लगा सकते हो. जहां चाहो वहां अननोन लगा सकते हो. यहाँ पे इन द राइट गैप यू हैव अ वेरिएबल रजिस्टर इसलिए इसके ऊपर एरो हेड है. इसको कुछ नाम दिया है बुक में नाम दे देता हूँ R. फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ A एंड हियर आई विल टेक पॉइंट C. यहाँ पे मैं 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का वायर लगा देता हूँ. फिर यहाँ से नीचे हम लोग एक बैटरी लगाएंगे वाया अ की एंड अ रियोस्टैट. रियोस्टैट बताओ मत बताओ डजंट मैटर क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू राइट स्टेट बोर्ड थियरी हियर. डजंट मैटर रियली. ए सी आप देख रहे हो ये A पॉइंट है ये C पॉइंट है. ये लेफ्ट R1 ये राइट R2 मतलब ये R1 है ये R2 है. R1 और R2 के बीच का पॉइंट है B. तो R1 और R2 के बीच का पॉइंट है B मतलब ये पॉइंट है B. अभी B और D के बीच में एक वायर गैल्वेनोमीटर के थ्रू. तो हम लोग यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर निकाल लेंगे. सम गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ जॉकी हम लोग इस जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं बिटवीन A एंड C. तो दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट. इसको जहां चाहो वहां आप मूव कर सकते हो. नाउ व्हाट हैपेंस इज हमको अगर x फाइंड करना है अननोन रेजिस्टेंस उसको लेफ्ट गैप में लगा दिया हमने. गुड. तो हमको नल पॉइंट ढूंढना होता है. व्हाट इज नल पॉइंट? नल पॉइंट इज व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो रीडिंग. राइट. करेक्ट. अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डिटेल बता देता हूं. मे बी दे कैन आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ थियरी क्वेश्चन. पहले A पॉइंट पे जॉकी को टच करना होता है फिर C पॉइंट पे टच करना होता है. नीडल का डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में जाना चाहिए. मैंने A पे कनेक्ट किया मुझे 1 एम्पियर मिला. मैंने C पे कनेक्ट किया 3 एम्पियर मिला. वी कैन नॉट प्रोसीड. फिर क्या करोगे? ये वेरिएबल रजिस्टर इसके लिए होता है. रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करो. फिर A पे टच करो -1. B पे टच करो +2. ठीक है. नाउ द डिफ्लेक्शन वाज इन अपोजिट साइड. क्यों? क्योंकि नहीं तो नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं. आपको पहले +1 मिला था A पे फिर आपने C पे टच किया 3 मिला. मतलब A से C तक आप कहीं भी टच करोगे तो 1 से 3 के बीच में करंट की वैल्यू मिलेगी. नल पॉइंट मिलना ही नहीं वाला. नल पॉइंट नहीं मिला मतलब गैल्वेनोमीटर से हमेशा करंट पास हो रहा है.
जब गैल्वेनोमीटर से हमेशा करंट पास हो रहा है तो हम लोग ये बैलेंसिंग कंडीशन यूज नहीं कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? इज इट क्लियर? तो इसलिए नल पॉइंट मेथड बोलते हैं इसको हम लोग. तो मान लो ए पे टच किया था -1 मिला, सी पे टच किया +2 मिला, मतलब -1 से +2 के बीच में 0 आने वाला है. हमको करंट गैल्वेनोमीटर से 0 करना है. फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे जॉकी को टच करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि एक पॉइंट मिल गया जिसके लिए करंट 0 है, और देन द डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ ए टू डी इज x और d टू c इज 100 माइनस x, क्योंकि ये 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का वायर था. तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, और A से D के बीच में होता है R3. मतलब ये जो वायर है इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R3, और ये जो है दिस विल बी R4. लेकिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमको लेंथ पता है. तो हमारे पास एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो रेजिस्टेंस ऑफ AD will be equal to length into resistance per unit length. अभी जो भी सिंबल यूज किया, I don't know whatever it is, sigma, right? तो x into r by l, dimensionally it is only resistance. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसे निकाल, आप रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सिंपल. तो आर ए डी का रेजिस्टेंस मिल गया तो आर सी डी का भी मिलेगा, 100 माइनस एक्स सिग्मा. अब आप बोलो R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4. R1 क्या था, R1 था X, R2 क्या है, R2 है R वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज सिग्मा सिग्मा कैंसल, तो X अपॉन 100 माइनस X, है ना, राइट? राइट. R3 क्या है, R3 क्या है, बराबर लिखा है मैंने. सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है आपको, यहाँ पे ये x, मैं इसको एल एक्स बोल देता हूँ, फिर ये एल एक्स है, ये 100 माइनस एल एक्स है. ओके. R3 इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, बराबर है वो. दिस इज हाउ यू फाइंड आउट रेजिस्टेंस X. जागते रहो.